Good evening, everyone. Today, I will explain this case law first, okay? Before explaining this case law, I have to explain little bit more other things also. Okay. So in our last class, we have learned what types of contract, isn't it? Types of contract. So did you remember what are those? Void agreement first. Then? Huh? After void agreement, then? Huh? Yes? Valid contract, fine. Valid contract, then? Void contract, then? Voidable contract, then? Yes, fine. So those things you have understood, I think? With the example, whatever example I have given, that one you have understood? Any doubt regarding my last class? Any doubt? Illegal contract? Voidable, I told you na, avoidable. Voidable ki asile? What was the voidable? Voidable, you have to keep this voidable one, you have to resemble this voidable with the word avoidable. With the word avoidable. Fine. Now voidable are what I have given you the example. Did you remember? Yes. जैसे कौन? किरण. किरण का नाम देखो मुझे कितना याद है. Now किरण आया मेरे पास. मुझे क्या बोला था? मेरा एक फ्लैट है. I want to sell that property, okay? But Kiran came to me and Kiran was Kiran ने क्या किया? Kiran put gun on my head. Fine. और किरण ने मुझे क्या बोला? नहीं मैम, ये फ्लैट जो आपके पास है, that one you have to sell it to me. अगर आप मुझे सेल नहीं करोगे, तो मैं आपको गोली मार दूंगा. तो मैम तो डर गई ना, कि अरे अब मैं अगर किरण को अपना प्रॉपर्टी सेल नहीं की, तो किरण मुझे गोली मार देगा, है ना? तो what I did? I did an agreement with Kiran. Okay? ठीक है? मैंने agreement किया कि okay, fine Kiran, I'm going to sell my flat to you. I am going to sell my property to you. लेकिन वो कैसे हुआ? Is it my free consent was there? No, my free consent was not there. So what was there? Coercion. Fine? Very good. Coercion. ठीक है? वहाँ पे coercion था. Coercion means physical pressure. Undue influence means mental pressure. Okay? Fine. Now, coercion था वहाँ पे, तो मुझे by coercion I sold my property. I sold my flat to Kiran. ठीक है? Now, अब मैं अगर सोचूं कि ठीक है, एक बार मैंने सेल कर दिया,
माई प्रॉपर्टी ऑलरेडी आई हैव सोल्ड, तो अभी मैं क्यों ये सब झंझट में जाऊं? अगर मैं उसको क्या करूं? अवॉइड करूं। अगर मैं उसको अवॉइड करूं तो इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं उसको अवॉइड नहीं करती हूं, मैं अगर उसको अवॉइड नहीं करती हूं एंड छुप छुप के, ठीक है, किरण को एकदम नहीं बोल के देखा, किरण देखा नहीं नहीं नहीं, सो आई वेंट टू कोर्ट फॉर माई लीगल रिमेडी, फॉर माई लीगल रिमेडी। देन जब मैं लीगल रिमेडी कोर्ट से मांगूंगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है? You please note down the example, it is not in your book. Please note down this example. আৰু যদি এক্সাম্পলটো মনত নাথাকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ল'বা, তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, বিকজ নাও ইট ইজ দেয়াৰ অনলি অলছ' ইন ইউটিউব, so it will be convenient for you. Fine? So can I go ahead? ठीक है, चलो। So now, today, we are going to learn about the different types of offer. Different types of offer. মই ইয়াতে লিখিছো হা, সাইডত লিখি দিছো। Where is this? No. Okay, fine. Now first, different types of offer. Yes? Come for me. So different types of offer. अब offer किसे बोलते हैं? Offer means offer is equal to proposal. Fine? Offer is equal to proposal. Fine? तो offer हो गया proposal, and that person जो offer दे रहा है, he or she will be called as, क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? The person who will give offer, offerer. ठीक है? जो ऑफर देता है वो क्या हो गया? जैसे मैंने तुमको एक ऑफर दिया, क्या तुम मेरा ये चश्मा लोगे? ठीक है? सो आई एम द ऑफरर। फाइन। जो तुमने एक्सेप्ट किया, यू आर द ऑफरी। ऑफरी बोलते हैं, ठीक है? ऑफरी भी बोलते हैं। अगर इसको हटा दो ऑफरी को, ऑफरी, लेकिन समझ लो कि डबल ई जब आएगा ऑफरी, दैट मीन्स ऑफरी इज इक्वल टू एक्सेप्टर। ओके, एंड इट इज इक्वल टू प्रॉमिसर। फाइन? इज इट क्लियर? ये लिख लो, ऑफरर, ऑफरर इज द प्रोपोजर। ठीक है? हो गया? फाइन। ऑफरर कौन है? प्रोपोजर, जो प्रपोज करते हैं। जैसे किरण ने प्रपोज किया था ना उस दिन उस लड़की को, तो दैट इज कॉल्ड द ऑफरर। ठीक है? देखो उसका मुंह में हंसी। नेक्स्ट, देन जो ऑफर जो देते हैं, जिसको ऑफर देते हैं, वो क्या हो गया? एक्सेप्टर। है ना? है या नहीं? जो एक्सेप्ट करते हैं, जो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। फाइन? एक्सेप्टर इज इक्वल टू हु? प्रॉमिसर। फाइन? प्रॉमिसर। और नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? ऑफरी। ठीक है? इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट है? No doubt? Fine.
ठीक है, चलो. नाउ वी आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर. ठीक है. ना एक बात तुम लोग को बता देती हूँ, जो ऑफर है ना, ऑफर के पहले क्या होता है? डू यू नो? ऑफर के पहले क्या होता है? ऑफर के पहले क्या होता है? जैसे मैंने ऑफर दिया, ठीक है, लेकिन ऑफर उसके पहले भी क्या होता है? जैसे दुकान में जाते हो ना, है ना, कोई दुकान पे गया, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ डिस्प्ले करके रखा है, बिस्किट, शैम्पू, ऐसा सब कुछ डिस्प्ले करके रखा है. सो व्हाट इज दैट? डिस्प्लेइंग ऑफ थिंग्स एज ए होल, उसको क्या बोलते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर. इज इट क्लियर? पहले इन्विटेशन, इनवाइट करते हैं ऑफर का, बाद में क्या करते हैं? फिर ऑफर. जैसे एक शॉपकीपर ने अपनी दुकान पे सब कुछ, अपने सारे चीज़ों को डिस्प्ले करके रखा है, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है. देन आई विल गो टू दैट शॉप and I will ask the shopkeeper, I want can you give me Pantene shampoo? That is called offer. ठीक है, और वो एक्सेप्ट करते हैं. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस. ठीक है, एक्सेप्टेंस करना मतलब प्रॉमिस करना. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो? चलो, shall I rub it? Now, नंबर 1, पहला ऑफर. पहला ऑफर क्या है? जनरल ऑफर. जनरल ऑफर. ठीक है. नाउ जनरल ऑफर, व्हाट इज द जनरल ऑफर? जनरल ऑफर क्या है, पता है? जनरल ऑफर, रोहित, भूमि? जनरल ऑफर मीन्स जैसे न्यूज़पेपर पे कोई भी एड दे दिया, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर. ओके, एट ए लार्ज देते हैं. ठीक है, हो गया. उसमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. जैसे आपका हो गया इनविटेशन टू ऑफर, जैसे हो गया ना, जैसे एज ए होल, मतलब न्यूज़पेपर में कोई ऐड दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो क्या हो गया? जनरल ऑफर. ठीक है, फाइन, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर. न्यूज़पेपर, इफ जैसे एक मिसिंग पर्सन का ऐड दे दिया मिसिंग न्यूज़पेपर पे, और अगर जो मिसिंग पर्सन है उसको मिल गया, कोई भी वो एक्सेप्ट कर सकता है ना, कि यू विल गेट, इफ यू विल give me my daughter back to me, then I will give you a award of ₹50,000 से. तो कोई भी एक्सेप्ट, कोई भी आदमी जिसको भी मिला, वो बच्चा को, जब बच्चा को मिला तो वो आके जब उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास देता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस. यस और नॉट? तो दैट इज, दिस इज कॉल्ड द जनरल ऑफर. ठीक है, समझ में आ गया? नंबर 2, जनरल ऑफर में आप लिख दो कि मिसिंग एड. मिसिंग एड इन अ न्यूज़पेपर. ठीक है, मैं अपना घर रेंट में देना चाहता हूं, तो मैंने न्यूज़पेपर में एक एड दिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल ऑफर. फाइन, इज इट क्लियर? Number 2, specific offer.
अब स्पेसिफिक ऑफर का एग्जाम्पल दो जल्दी। कौन है? किरण का एग्जाम्पल याद है? हाँ, recruitment in a company, that is called what? Specific offer. Specific offer is not a recruitment of a company. Recruitment तुम किसका चाहते हो वो तुमको specific offerer specific होना पड़ेगा। ऑफरर और एक्सेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑफर दिया, मैंने इसको ही पर्टिकुलरली ऑफर दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑफर। ओके, सपोज यू हैव गिवन द ऑफर टू ए गर्ल, yes or not, specifically that girl, no other, that is called a specific offer. Okay, fine, is it clear? Number three is counter offer. Number 3 is counter offer. Now what is called counter offer? ये लिख लो, कुछ भी नहीं है, this is okay. किरण और example लिखी सब fine. সেইটো মুছিব নালাগে, that is the main example. Why I have given you this example? You will remember that one. Okay? Now, counter offer कैसे हो सकता है? मतलब मैं बोलती हूँ, suppose A is a person, okay? A is going to sell his car at कितना? Around 2 lakhs. ठीक है? A is having a car. A want to sell that car to whom? To B. ठीक है? At rupees 2 lakhs. Fine. अब उसको काउंटर ऑफर दिया। काउंटर ऑफर क्या दिया? B ने फिर A को ऑफर दिया क्या? कि कैन यू सेल योर कार at 1.5 lakh. This is called the counter offer. समझ में आया? जैसे मैं एक दुकान पे गया, ठीक है, मैंने ऑफर दिया कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वांट दिस मोबाइल, ठीक है, मैंने एक ऑफर दिया कि मुझे ओप्पो का एक मोबाइल चाहिए, तो उसने मुझे बोला, मैंने ऑफर दिया, तो द शॉपकीपर ही टोल्ड, मतलब द सेलर ने क्या बोला? सेलर ने मुझे बोला मैं आपको क्या, सेलर से मुझे सेलर ने बोला कि दिस इज द सपोज 20,000 इज द अमाउंट, ओके, यू हैव टू पे। तो मैंने उसको काउंटर ऑफर दिया कि कैन यू गिव मी दिस मोबाइल एट अराउंड 17,000, तो दैट इज कॉल्ड द काउंटर ऑफर। ठीक है, सिंपल बार्गेनिंग। बुझी पाला? इज इट क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट? नो, ठीक है। नाउ नंबर 4, काउंटर ऑफर के बाद क्या है? क्रॉस ऑफर। Cross offer. Now what is called cross offer? What is called cross offer? Cross offer जैसे these are called as identical offer. Identical offer. एक ही समय में 2 पर्सन से ऑफर आ रहा है और एक ही चीज को लेके, ठीक है, जैसे
What example I will give you? Suppose मेरे घर पे एक गेस्ट आया, ठीक है? At my home one guest came, ठीक है? कोई गेस्ट आया, तो गेस्ट जब आया तो मैंने गेस्ट को क्या ऑफर दिया? चाय पियोगे, है ना? और उसी समय वो भी बोला कि मुझे थोड़ा चाय चाहिए, ठीक है? चलो चाय बनाओ थोड़ा, ठीक है? सेम टाइम सेम ऑफर केम, यस और नॉट, फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द पार्टीज, ओके? ठीक है? सेम थिंग, अबाउट द सेम थिंग, एक ही चीज, चाय का ही, दूसरा कोई नहीं, ठीक है? फाइन, समझ में आया ना? तो सेम चीज का ऑफर दिया सेम टाइम में दोनों पार्टी से। अब उसका एक्सेप्टेंस आप कैसे समझोगे? किसका पहले एक्सेप्ट करोगे? जिस मतलब आप कैसे समझोगे कि कौन पार्टी कौन सा ऑफर सबसे पहले दिया? जिसका ऑफर पहले एक्सेप्ट हुआ, दैट पार्टी इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑफरर। इज इट क्लियर? ठीक है? जैसे मैं भी सोच रही हूँ चाय देना है, वो भी सोच रहा है कि चाय बोलो, तो मैंने बोल दिया उसके बोलने के पहले, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया उस, ओके, और मैं बन गई फर्स्ट ऑफरर। अगर उसका तरफ से फर्स्ट बोलने आया, एकदम जस्ट 1 मिनट गैप, 1 सेकेंड गैप, ऐसा अगर हुआ, तो जो भी आदमी एक्सेप्ट फर्स्ट करता है, द अदर पार्टी विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑफरर। ओके, ठीक है? एनी डाउट? Ma'am, Any আৰু doubt? এটা বেলেগ এক্সাম্পল দিয়ক। হা, পাৰ্ডন? আৰু এটা বেলেগ এক্সাম্পল দিব পাৰিব নি? কি কৈছা? বেলেগ এক্সাম্পল এটা মানে এক্সামটো আচ্ছা, আৰু এটা এক্সাম্পল। ওকে, চিয়'ৰ। যেনেকুৱা suppose suppose I am A, ठीक है? I am a person called A, ठीक है? और किरण हो गया B, ठीक है? किरण कौन? B, ठीक है? फाइन किरण। नाउ किरण आया मेरे घर पे, मुझे क्या करना था? नहीं बच्चा, मेरा एक बाइक है, वो सेल करना था मुझे, ठीक है? आई हैव टू सेल वन ऑफ माई बाइक, ठीक है? नाउ किरण भी वही सोच रहा है कि मुझे मैम से बाइक खरीदना है, ठीक है? तो तुम जल्दी आए, मैं भी तुम्हारे, हाँ किरण आओ जल्दी आओ। तो प्राइस जो है ना, प्राइस, रिगार्डिंग द प्राइस, मैंने तुमको ऑफर दिया कि कैन यू बाय दिस बाइक एट अराउंड 50,000 रुपीज, ठीक है? और तुमने मुझे ऑफर देने के पहले, जैसे एक ही चीज बाइक को लेके हो रहा है ना, तो तुम भी खरीदना चाहते हो, तो तुम जब मुझे ऑफर, जैसे तुम बोल रहे हो कि तुमको मुझसे खरीदना है 20,000 रुपीज में, ठीक है? तो अब तुम्हारा और मेरा ऑफर एक ही टाइम में हुआ, ठीक है? अभी जो पार्टी जिसने पहले ऑफर दिया, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय यू, and that party is called the first offerer. ठीक है? Is it clear now? Yes, ma'am. Any doubt? No. ठीक है, ফাইন, বুজি পালা তো? ma'am, বুজি পালো। যোনে ফার্স্ট অফার দিব, যার ফার্স্ট ऑफर टू एक्सेप्ट हो, इफ किरण ने अगर वो चीज एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं हो गई क्या? फर्स्ट ऑफरर। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, देन आई कैनॉट बी कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑफरर। इज इट क्लियर? ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज द स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर किसे बोलते हैं पता है? डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग स्टैंडिंग ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर्स आर द
टेंडर रिलेटेड ऑफर्स, टेंडर रिलेटेड ऑफर्स। देखो ये समझ लो अच्छा से। अब जैसे मैं एक शॉप में गई, ठीक है, मैं एक शॉप में गई और मैंने बोला कि मुझे कल से असम ट्रिब्यून का पेपर चाहिए, ठीक है, मैंने ऑफर दिया है ना, आई नीड असम ट्रिब्यून पेपर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 2 months, टिल 2 months। सो 2 months तक क्या है, जो पार्टी है, जो एक्सेप्टर है, जो जिसने एक्सेप्ट किया, ओके मैम, तो वो रोज मुझे क्या करेगा, रोज मुझे न्यूज़पेपर देगा एवरी डे। तो उसके लिए क्या मैं क्या हमेशा उसको ऑफर दूंगी कि आज मैंने लिया, कल फिर बोलूँगी कि ये चलो तुम मुझे आज मुझे न्यूज़पेपर दो, फिर नेक्स्ट डे बोलूँगी, नो, ऐसा नहीं होता है। स्टैंडिंग ऑफर मीन्स मैंने आज एक ऑफर जो दे दिया, फॉर 2 months इट विल कंटिन्यू। ओके, इज इट क्लियर नाउ? दिस इज कॉल्ड द स्टैंडिंग ऑफर। ओके, जैसे गाड़ी ऑयल इंडिया में टेंडर का देता है ना, कि टेंडर ऐसा, तो गाड़ी जैसे लेते हैं और ऐसा है कि उसका कितना, जैसे 2 years तक गाड़ी चलेगा, वो रोज नहीं बोलता है कि हाँ इस यहाँ पे लाओ गाड़ी, ऐसे चलो चलाओ, नहीं, एक बार जो स्टैंडिंग ऑफर दे दिया, एक बार ऑफर कर दिया, तो वो 2 years नहीं तो 3 years, जो जैसा है एग्रीमेंट में लिखा है वैसा ही होते रहेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग ऑफर। यस रोहित, नाउ टेल मी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, फाइन, एनी डाउट, एनी डाउट? नो? और एक एग्जाम्पल, नहीं ये एग्जाम्पल, जैसे न्यूज़पेपर का बोलूँ, न्यूज़पेपर का मैंने जैसे मेरे घर पे मैंने एक लड़का को बुलाया कि मुझे कल से न्यूज़पेपर चाहिए, टेलीग्राफ चाहिए, ठीक है, टेलीग्राफ चाहिए, तो मैंने उसको ऑफर दिया ना कि है तुम्हारे पास टेलीग्राफ है, तो उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरे पास है, तो तुम मुझे कल से टेलीग्राफ देना शुरू करो फॉर 2 months। तो वो रोज आके तुम्हारे घर पे टेलीग्राफ देगा, तो वो स्टैंडिंग ऑफर है। मैंने एक बार जो ऑफर दे दिया वो खड़ा है ऑफर, वो ऐसा फिर खत्म नहीं हो गया। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे हम लोग का डीपीएस में स्कूल में, ठीक है, डीपीएस स्कूल में जैसे एक ड्रेस का, बच्चों का ड्रेस का, यूनिफॉर्म का टेंडर देते हैं ना, तो कोई पार्टी आया और उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है हम लोग सर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब उन्होंने प्रोवाइड, वो जब बोले कि प्रोवाइड करेंगे, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर अराउंड 2 years, ठीक है, तो रोज मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिला दो, ऐसा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द टेंडर, मतलब टेंडर रिलेटेड ऑफर्स। ओके, ठीक है, ये है तुम्हारा स्टैंडिंग ऑफर। इज इट क्लियर? फाइन, नो डाउट? अब जनरल ऑफर का मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, दिस is one of the famous case, this is one of the famous case, মোৰ ইয়াত অকমান স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে হা, this is, wait ৰবা, ये this is called Carlyle, okay, fine, and this one is called कार्बोलिक, फाइन, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मतलब टाइप करने जब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी, ठीक है, ये एक केस है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट्स अ केस ऑफ जनरल ऑफर, इट्स अ केस ऑफ जनरल ऑफर। तो यहाँ पे क्या हुआ,
एक समय का बात है जो जहाँ ऐसा आप लोग ने देखा ना, कोविड-19 ये एपिडेमिक है, तो ऐसे ही एक एपिडेमिक था, क्या? इन्फ्लुएंजा। ओके, इन्फ्लुएंजा एक एपिडेमिक था एक समय में। तो उस समय क्या हुआ, सब लोग लगे हुए थे कि इन्फ्लुएंजा का एक मेडिसिन चाहिए, या इंजेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना, पीपल को, मतलब आदमियों को बचाने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द कंट्री और द सोसाइटी। ठीक है, तो क्या हुआ, कार्बोलिक स्मोक कंपनी एक कंपनी है, ठीक है, एक मेडिसिन का कंपनी है। तो उसने क्या किया, एक ऐड दिया, कहाँ पे? डेली न्यूज़पेपर में, कि मेरे पास इन्फ्लुएंजा प्रोटेक्शन का एक मेडिसिन है, आई हैव। ठीक है, मेरा कंपनी एक इन्वेंट किया एक मेडिसिन, ठीक है, किसके लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए, ठीक है, ताकि आदमियों को, पीपल शुड नॉट सफर फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं हो। ठीक है, तो उसने ये ऐड दिया कि मेरे कंपनी के पास एक इन्फ्लुएंजा का मेडिसिन है, दैट इज कॉल्ड द स्मोक बॉल्स। उस मेडिसिन का नाम क्या है? स्मोक बॉल्स। और वो एक स्प्रे था, दैट वाज अ स्प्रे, ठीक है, एक स्प्रे था। तो जब ये बोला गया कि मेरे पास मेडिसिन है इन्फ्लुएंजा का, और अगर ये किसी ने, इफ एनीवन will consume this medicine, consume this smoke ball medicine, nobody will suffer from influenza, किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में ऐसा भी बोला गया, किसने बोला? जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने क्या बोला कि किसी भी, कोई भी आदमी अगर ये कंज्यूम किया, क्या कंज्यूम किया? स्मोक बॉल मेडिसिन स्प्रे अगर कंज्यूम किया, और उसे इन्फ्लुएंजा बाय चांस हो गया, then he or she can claim for 100 pounds। और जो कंपनी है, क्या कंपनी है? कार्बोलिक स्मोक कंपनी। उसने क्या किया, एक अलग से एक अकाउंट भी खोल लिया, और उस अकाउंट में 100 pounds that company has transferred। ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, 100 pounds ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पे? एक अलग सा अकाउंट में, बैंक अकाउंट खोला, जहां पे वो 100 pounds ट्रांसफर कर दिया कि अगर बाय चांस किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो आपको हम दे देंगे 100 pounds। तब उसी बीच मिसेस कार्लिल, ये रुको, ये फिर मिसेस कार्लिल एलिजाबेथ कार्लिल, मिसेस कार्लिल क्या किए? उसने मेडिसिन को परचेज किया फ्रॉम द फार्मेसी। ठीक है, उसने परचेज किया मेडिसिन को, एंड शी कंज्यूम्ड दैट मेडिसिन। व्हाट मेडिसिन? द स्मोक बॉल स्प्रे। शी हैज कंज्यूम्ड दैट वन। ओके, कंज्यूम करने के बाद, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट मेडिसिन, उसको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, उसको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट शी डिड, शी हैज गिवन रिटन कंप्लेन टू द कंपनी, टू दैट कंपनी। उसने 2 times रिटन कंप्लेन भेजा, लेकिन फिर भी वहां से
कार्बोलिक स्मोक का कंपनी से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं था. नो रेस्पॉन्स दे हैव गिवन दिस कार्बोलिक स्मोक कंपनी. ठीक है, जब ऐसा हुआ थर्ड टाइम उसने क्या किया, उसने सीधा कोर्ट में चला गया. वो सीधा कहाँ पे चली गई? कोर्ट में चली गई. फॉर व्हाट? फॉर लीगल रिमेडी. फॉर लीगल रिमेडी कि देखो भाई, मेरा तो ऐसा हुआ, मैंने तो कंज्यूम कर लिया मेडिसिन, स्मोक बॉल स्प्रे मैंने कंज्यूम कर लिया, एंड आफ्टर दैट मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, तो आई एम क्लेमिंग फॉर दैट. किस चीज़ के लिए क्लेम कर रहा है? 100 पाउंड्स के लिए. 100 पाउंड्स के लिए. ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना? 100 पाउंड्स के लिए वो किसने क्लेम किया? एलिजाबेथ कार्लिल ने. ठीक है, अब क्या हुआ? जो कंपनी है उसने बोला कि मैंने तो स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैंने नहीं ऑफर दिया था. आई हैव नॉट गिवन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हो गया, मैं उसको कैसे दूँ? ये तो जनरल ऑफर था, है ना? लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इसमें जनरल ऑफर था, लेकिन एक्सेप्ट तो कोई भी कर सकता है. तो कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया कि नो डाउट इट्स अ केस ऑफ जनरल ऑफर, है ना? और जब जनरल ऑफर होगा तब कोई भी क्या कर सकता है? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. और अगर कोई भी एक्सेप्ट किया तो आपने तो ये बोला था ना कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो दैट पर्सन कैन क्लेम फॉर 100 पाउंड्स. ये है ना? तो यू हैव टू पे 100 पाउंड्स टू मिसेस कार्लिल. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? एनी डाउट? Is it visible? Visible, na? Students, is it visible? Online students? No, ma'am. Huh? No. No. No, ma'am. You are not able to see? आप लोग देख सक रहे हो? जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देख सक रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, वही. Yes. फाइन. इतना समझ में आ गया ना तुम लोग को? Now another example I will give. Now, invitation to offer. Invitation to offer का एक केस लॉ है. इट्स अ वेरी फेमस केस, हैरिस वर्सेस निकर्सन. हैरिस वर्सेस निकर्सन. ठीक है, ये किस चीज़ का केस है? किस चीज़ का केस है? इनविटेशन टू ऑफर. ओके, इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, ऑफर के पहले क्या होता है? ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर का ये केस लॉ है. अब देखो, आपको पता है ऑक्शन क्या है? ऑक्शन बोली जो लगाया जाता है ना? बिडिंग होता है वहाँ पे. ठीक है, फिर ऐसे जो हैमर का ये होता है ना? उसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 ऐसा बोलते हैं ना? गॉन गॉन गोइंग ऐसा बोलते हैं ना? दैट इज कॉल्ड ऑक्शन. ओके, प्रोसेस ऑफ ऑक्शन. अब यहाँ पे देखो, हैरिस वर्सेस निकर्सन. ये जो ऑक्शनर है, कौन है ऑक्शनर? ऑक्शनर कौन है?
ऑक्शनर है निकर्सन, ठीक है, और हैरिस ने केस किया निकर्सन के अगेंस्ट पे, ठीक है, फाइन। नाउ एक एडवर्टाइजमेंट क्या न्यूज़पेपर में, जनरल एक न्यूज़पेपर में किसने, निकर्सन जो है उसने एक ऐड दिया, ठीक है। क्या ऐड दिया कि मेरे ऑफिस का क्या है, मेरे ऑफिस का फर्नीचर है, दैट फर्नीचर इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन कम फॉर दैट, मतलब मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, सो देयर विल बी एन ऑक्शन फॉर दिस ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस फाइल किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैरिस, ठीक है। हैरिस क्या हुआ, हैरिस बहुत दूर एक जगह पे रहता था, ठीक है, बहुत दूर एक जगह पे रहता था। तो हैरिस ने क्या देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, तो हैरिस को अच्छा लगा, तो हैरिस वांट टू बाय दैट फर्नीचर, ठीक है। वो बहुत दूर से आया, ट्रैवल करके आके वो ऑक्शन में क्या करना चाहता था, पार्टिसिपेट करना चाहता था, ठीक है। वो ऑक्शन में जैसे आज आया और कल होगा ऑक्शन, ठीक है, वो बहुत दूर आया ट्रैवल करके एंड ही वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट ऑक्शन, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, ऑक्शन कैंसिल हो गया, वो ऑक्शन कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, वो ऑक्शन कैंसिल हो गया। तो वो तो इतना ट्रैवल करके आया है ना, तो फिर वो क्या वो निकर्सन से क्लेम किया, क्या चीज़ क्लेम किया, अपना जो इतना डैमेज हो गया उसका तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि वो अपना ट्रैवल करके आया इतना दूर, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट हुआ, उसका पैसा भी गया, हाँ, तो वो अभी अपना डैमेजेस तो क्लेम करेगा ना, तो उसने अपना डैमेजेस को क्लेम किया, ठीक है। किसको क्लेम किया, निकर्सन। फिर निकर्सन ने बोला नहीं, ये तो भाई नहीं दे सकते हम, देन ही वेंट टू कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी, ठीक है, ही वेंट टू कोर्ट फॉर लीगल रिमेडी। तब कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट सुनाया, कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाया कि दिस इज अ केस ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर, इन्विटेशन टू एन ऑफर। जैसे इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या होता है, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करके देते हैं, है ना, मैंने बोला ना, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करते हैं, तब उसमें से अगर कोई भी, जैसे इसका नाम क्या है, हैरिस अगर जो बिडिंग है, बिडिंग में अगर पार्टिसिपेट करता, बिडिंग को एक्सेप्ट करता कि नहीं मैं अभी बिडिंग को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देन वो क्लेम कर सकता है, देन ही इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग दैट वन। लेकिन वो तो बिडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसका तो क्या हुआ, उसका तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना, उसका तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो ये तो इन्विटेशन टू ऑफर है, तो इसमें कोई आपको लीगल रिमेडी नहीं मिल सकता है, ओके, इज इट क्लियर। इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो कोई भी पार्टी आ सकता है, कोई भी पार्टी एक्सेप्ट कर सकता है, उससे इस कंपनी का इस आदमी का जो निकर्सन है उसका कोई लाभ नुकसान वो नहीं देखेगा, ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, एनी डाउट, नो, ठीक है। ऑक्शन समझ में आ गया, इन्विटेशन टू एन ऑफर, ठीक है। ऑक्शन का होना मतलब क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफर, जो ऑक्शन का जो ये देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। जब बिडिंग स्टार्ट होता है तो दैट मीन्स यू आर ऑफर आप देते हो, ना, इतना 1 लाख 2 लाख 3 लाख, दैट इज कॉल्ड ऑफर, फाइन। जब बिडिंग को फॉल ऑफ हैमर होता है, 1 2 3 4 गॉन गोइंग गॉन, ऐसा जब होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इतना कोई डाउट है, और की बात से डाउट,
বুজি পালা ন একসেপ্টেন্স ক'ত গৈ হৈছে যেতিয়া ফল অফ হেমাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ আগলগে কি হ'ব তাৰ আগলগে एडवर्टाइजमेंट जो करीब ऑक्शन और दैट इज कॉल्ड इनविटेशन टू एन ऑफर जब बिडिंग स्टार्ट होगा यू विल टेक पार्टिसिपेशन इन बिडिंग देन इट इज कॉल्ड एन ऑफर ठीक है इट इज कॉल्ड एन ऑफर एंड व्हेन इट विल बी एक्सेप्टेड मींस फॉल ऑफ हैमर जब होगा 1 2 3 4 गोइंग 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 गॉन तो हो गया दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ठीक है बाप रे तुम लोग को समझाने के लिए ओके नाउ दिस मच क्लियर व्हाट इज द टाइम नाउ ओके फाइन अच्छा इसमें आप लोग को कुछ बोलना है नहीं बोलना है कुछ बोलना है नहीं बोलना है ना कुछ बोलना है एनी डाउट यू हैव it's a very long many things are there ओहो अब इसको ठीक है That day, I think I told you about the capacity of parties, ना? Capacity of parties मैंने बोला था ना? क्यों नहीं बोला था? Minor, insolvent बोला था ना? I told you ना? This one I have completed this one. Insolvent you know ना? Insolvent. What is the meaning of insolvent? Yes. जो डेप्थ में रहते हैं, जो अपने जो हाँ कर्जदार जो जिसके रहते हैं ना okay that is called the insolvent he is not eligible to pay he is not capable of paying his debts so that person is called as insolvent okay minor child who is the minor child below 18 years of age ठीक है that is called a minor child fine then unsound mind idiot होता है या नहीं तो lunatic होता है मतलब समझ में आया आपको अनसाउंड माइंड ही इज नॉट इन अ विथ अ स्टेबल ब्रेन स्टेबल माइंड ओके ही इज नॉट इन अ स्टेबल माइंड ओके डिसेबिलिटीओ থাকিব পাৰে ঠিক আছে কেতিয়াবা पागल भी हो सकता है ऐसा है ना ठीक है समझ में आया दैट इज कॉल्ड द अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंट ओके एंड कन्विक्टेड मीन्स जिसको जेल हो जाता है ना कोई भी क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट है और ही गॉट पनिशमेंट ठीक है उसको ऐसा सजा हुआ था लेकिन अब अभी छूट गया है ऐसा भी होता है कि अभी वो छूट गया है बट कन्विक्टेड हुआ था ठीक है ए बिलागोर की है ए बिलागोर दे आर नॉट कैपेबल दे आर इनकैपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू अ valid contract fine now who along with married woman she is capable হয় না নাই married woman अगर उसके बीच में हस्बैंड जैसे हस्बैंड है ठीक है हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन उसको वो अगर नॉमिनी है देन शी विल बी कैपेबल इफ शी इज नॉट ए नॉमिनी शी इज ए स्पाउस बट शी इज नॉट ए नॉमिनी देन देयर मे बी समटाइम्स अराइज प्रॉब्लम ओके बट जनरली द स्पाउस इज अ नॉमिनी एंड स्पाउस विल बी capable of entering into a contract in case of husband's death or like that okay okay next in my next class देखो तो क्या टॉपिक है अभी नेक्स्ट
what we have. Void and voidable agreement, you have understood now? তেতিয়াও অকমান বুজাই দিম আকৌ next one I will start consideration, okay? Consideration is also okay. Next one I will see. Okay, fine. এইবিলাক পাৰিবা অলৰেডি মই বুজালো এইবিলাক disqualified persons capacity to হৈ গ'ল coercion এইবিলাক বুজালো ন undue influence fraud quasi and contingent. Yes, in my next class I will explain you quasi and contingent contract. Okay, fine. ठीक है. So today here I am concluding the class. Thank you one and all. If any doubt, please ask me without any hesitation. Thank you. Thank you, ma'am.